Hello students, welcome in my channel. So in today's lecture we are going to proceed our topic, that is the applications of neutralization reactions. So what is the type of neutralizations? Means in yesterday's lecture we are discuss about the double decompositions or double displacement reactions, in that precipitation reactions and in that neutralizations reactions we are discuss. Is it okay, students? Now after the neutralizations reactions, neutralizations means the reactions in which the acids and base combines and form the salt and water, that is the famous reactions, that is the neutralization reaction. Now we are going to see the applications of this neutralization reaction. Actually, what are the different applications of the neutralization reactions in our day-to-day life? So before going to see the applications, we must know 2-3 concepts about the acids bases. What is the acids? Yes, students. So generally we have studied that acids are the substance which lose the H plus ions and bases are the substance which lose the OH minus ions. This is the basic concept. For example, if I will tell you HCl, if HCl is there, it loses the H plus ions from this solutions, as well as if NaOH we are going to write, it loses the OH minus ions. So this is the basic concept about the acids and bases. So the compounds which loses H plus ions known as the acids, the compounds which loses the OH minus ions is the base. But very important things that we must know, how we can check the given compound is acids or bases. So there are important 3 tests that also we are discuss. And what are that test, students? Yes, so the 3 famous tests is there for the checking of the acids and bases. Which are the 3 important famous tests? So first test is the litmus test, correct? So what is the litmus test? Litmus, you are having the 2 litmus papers. So litmus test is there. So by the litmus test you will be easily identify the acids and bases. So there are 2 litmus paper is there. So one is the red and another one is the blue, correct? Red and blue litmus is there. So in the acid, particularly in the acid, red litmus, correct? So red litmus, yes, acid, in the acid you are done the test, correct? So in the test what you are going to see? So in the test you can see red remains red only, but blue becomes red. Okay, so in the acid this red litmus paper is remains red, but blue becomes red, correct? So that is very important, blue becomes red. So that is the acid. Is it okay? So in the acidic solutions, blue litmus becomes the red. So that is very important. Understand? Is it okay? Is it okay? Because this is the basic part. So blue become reds, that is the test for acidic. Now after this test, obviously for the base. So what will be the base test? So opposite of this. In the acid we can write, in the acid blue becomes red. What about in the base? The base and red becomes red. So just opposite of this. Now in this case red becomes blue and blue becomes blue only. So this is the test of the identifications of the acids and base with the help of litmus. So in the acid, blue litmus convert into the red, but red becomes red only. So base, red litmus convert into the blue, but blue remains blue only. So this is the test actually to identify the given compound is acids or bases or neutral, correct? So neutral is another one type of solutions, correct? So this is the some basic concept, and after that there is another some indicators. Indicators means what actually? Which use, these are the also substances, which use to test the given substance is the acids, bases or neutral. So indicators,
is going to use. So there is another some important test to check the given substance is acidic, basic is there or not. So which is another test? Another one is the methyl orange test. Methyl orange test. So methyl orange test is very easy test, students. So we have to use the methyl orange as an indicator, and if your solution is acidic, it will be gives the pink color in the methyl orange. So acid gives the pink color. So acid gives the pink color, while if your solution is the base, so base gives the yellow color. Base gives the yellow color. So this is the another test. By this test also you can easily identify the which is the acidic solutions and which is the basic solutions. So this is very important. And another one indicator is there, that is the phenolphthalein indicator. Phenolphthalein indicators. So phenolphthalein indicators, if your solution is acidic, then acidic solution is there. If your solution is acid, then it becomes colorless only. So there is no change in color. So it indicates that that solution is the acid, as there is no change in the color. But at the same time, if you are using the phenolphthalein for the base, it converts into the pink color. It converts into the pink color. So by that we can easily understand that our given solution is acidic, basic or neutral. Correct? So in the neutral case, okay, so in the neutral case there is no change. Understand? So in the neutral solutions there is no any type of the changes observed in the red litmus or any solutions. Understand? So that this solutions is the neutral. But if the solution is acidic and basic is there, so such type of changes we are observing. Now this is very important before going to understand the applications of the neutralization reaction. Means you must know the knowledge of the acids and bases. And students, if you know these things, then we are going to proceed for the neutralization reactions applications. Okay, so I hope you are going to understand this topic. See once again, एक बार देख लीजिए फिर से, इन लिटमस टेस्ट, मिथाइल ऑरेंज टेस्ट और फेनोल्फथैलीन टेस्ट, ये तीन टेस्ट होते हैं एसिड्स और बेसिस आपके जो भी सॉल्यूशंस है उसको आइडेंटिफाई करने के लिए, या न्यूट्रल सॉल्यूशंस भी हो सकता है उसमें। तो लिटमस की टेस्ट में क्या बताया है, सिंपल सा मैंने आपको इधर ट्रिक्स दिया है। अगर कोई आपका एसिड सॉल्यूशंस होगा तो उसमें ब्लू लिटमस, दो कलर के लिटमस पेपर होते हैं, एक तो ब्लू होता है और एक तो रेड होता है। तो याद रखना है आपको, आपने टेस्ट किया भी होगा कि ब्लू लिटमस हमें रेड टेस्ट देता है, या ब्लू का कन्वर्जन रेड में होता है और रेड तो रेड ही रहेगा। ठीक है, तो ये हो गया फिर आपका एसिडिक सॉल्यूशन। ऐसे ही बेस के लिए भी दिया है, तो बेस में रेड लिटमस ब्लू दिखाता है और ब्लू तो ब्लू ही रहेगा। तो ये हो गया आपका बेस से रिलेटेड टेस्ट, जिसमें हमें रेड ब्लू देता है। और ऐसे ही टेस्ट है आगे, मिथाइल ऑरेंज इंडिकेटर्स यूज़ करना। इंडिकेटर्स क्या होता है बच्चों, इससे हमें कलर का चेंज समझ जाता है वो सॉल्यूशंस एसिडिक है या बेसिक है। तो इसके लिए हमने मिथाइल ऑरेंज इंडिकेटर्स लिया है। तो एसिडिक अगर सॉल्यूशन रहेगा आपका तो पिंक कलर देगा मिथाइल ऑरेंज में, अगर आपका बेस रहेगा तो वो येलो कलर का सॉल्यूशन बनाएगा, पर्टिकुलरली मिथाइल ऑरेंज इंडिकेटर में। ऐसे ही अगर आज अगला इंडिकेटर्स आपने देखा तो फेनोल्फथैलीन का इंडिकेटर्स यूज़ कर सकते हैं। फेनोल्फथैलीन में एसिड एक कलरलेस कलर दिखाएगा, तो कोई कलर का चेंज नहीं होगा उसमें, और बेस में वो पिंक कलर का कलर दिखाएगा। अगर आपने फेनोल्फथैलीन इंडिकेटर यूज़ किया तो बेस आपको पिंक कलर दिखाएगा, तो आप इजीली आइडेंटिफाई हो सकता है कि आपको एसिड है या बेस है। ये तीन टेस्ट अगर आपको फॉलो किए प्रॉपरली तो आपको इजीली अंडरस्टैंड हो जाएगा कि ये एसिड सॉल्यूशन है या बेसिक सॉल्यूशन है। सो दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट डिस्कशंस इन टुडेज लेक्चर। अभी हम आगे जाने वाले हैं, जो आपका टॉपिक है एप्लीकेशंस ऑफ द न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। अभी ये फंडे अगर मालूम हो गए आपको, एसिड्स क्या है, बेस क्या है, और ये अगर मालूम हो गए तो हम इजीली नेक्स्ट जो इसके एप्लीकेशंस वो समझ में आ जाएगी आपको। अभी न्यूट्रलाइजेशन होता क्या है, न्यूट्रलाइजेशन तो आपको मालूम है, इसमें सॉल्ट और वाटर बनता है, लेकिन ये अगर आपका एसिडिक सॉल्यूशन रहेगा तो इसको न्यूट्रल करना है, सिंपल सी बात है। और ये बात अगर आपके समझ में आ गई तो आपको इसके कंसेप्ट हमारे डे टू डे लाइफ में कैसे यूज़ करते हैं
ये भी समझ में आ जाएगा। अगर आपके पास एसिडिक सॉल्यूशन है, बराबर है, अगर आपके पास एसिडिक सॉल्यूशन है तो उसको अगर हमको न्यूट्रलाइज करना है या बेसिक बनाना है, न्यूट्रलाइज करना है या बेसिक बनाना है, बराबर है, तो आपको क्या करना पड़ेगा? सीधी सी बात है, आपको क्या करना पड़ेगा? ये एसिड में ऐसा कुछ डालना पड़ेगा जिससे इसकी एसिडिटी कम हो जाए, बराबर है। तो ऐसे कुछ केमिकल्स यूज़ करना पड़ेगा जिसमें ये एसिडिटी है उस सॉल्यूशंस का वो कम हो जाए। तो ऐसे क्या होता है, ऐसे क्या यूज़ कर सकते हैं, ऐसे सब्सटेंस को क्या कहते हैं? व्हाट इज द नेम ऑफ दिस सब्सटेंसेस? दिस आर नोन एज द एंटासिड्स। व्हाट इज द नेम? एंटासिड्स। तो एंटासिड्स बोलते हैं उनको, जो एंटासिड्स यूज़ करते हैं वो एसिडिटी कम करने के लिए। तो ऐसी ही एसिडिटी के प्रॉब्लम्स हमारे भी बॉडी में आते हैं। आपको मालूम है हमारे स्टमक में गैस्ट्रिक जूस, उसमें हाइड्रोक्लोरिक एसिड सिक्रेट करते हैं। तो हाइड्रोक्लोरिक एसिड की वजह से हमारी बॉडी में एसिडिटी बढ़ जाती है। अगर ज़्यादा सिक्रेशन हो गया तो तब एसिडिटी होती है तो क्या होता है? देयर इज इरिटेशंस इन द चेस्ट। तो हम क्या लेते हैं फिर? वो एसिडिटी कम करने के लिए हमको कुछ मेडिसिन लेनी पड़ती है, या कुछ हम मेडिसिन लेते हैं या इनो वगैरह लेते हैं। तो उसमें क्या होता है? उसमें एसिडिटी कम करने की एक्चुअली केमिकल्स होते हैं। तो उनको क्या कहते हैं? एंटासिड्स बोलते हैं, उनको एंटासिड्स बोलते हैं। ठीक है, तो ये हमें मालूम होना चाहिए कि एसिडिटी आपको कम करना है। ऐसी ही अगर यही है न्यूट्रलाइज करना बोले तो क्या आपको एसिडिटी कम करना है तो न्यूट्रलाइज करना है, बराबर है कि? ऐसे ही अगर एग्जांपल्स देख लिया आपने तो हमारे टीथ के बारे में अगर ले लिया, टीथ डिके होता है, मालूम है आपको? टीथ कभी कभी हमारे डिके हो जाते हैं। तो ये क्यों होता है? क्योंकि उसमें भी माइक्रो ऑर्गेनिज्म, बैक्टीरिया का अटैक होता है हमारे टीथ पे। तो उसके वजह से क्या होता है प्रॉब्लम? ये जो टीथ है इसका डिकेइंग होता है। और ये कम होने के लिए हम क्या यूज़ करते हैं बच्चों? टूथपेस्ट यूज़ करते हैं। और टूथपेस्ट में होता क्या है? उसमें एक्चुअली बेस होता है जो एसिडिटी कम करे। ऐसे केमिकल्स यूज़ करना है तो एसिडिटी कम करने के लिए ओब्वियसली क्या यूज़ करने पड़ेगा? तो बेस यूज़ करना पड़ता है, बेसिक सब्सटेंस यूज़ करना पड़ता है। आ रहा है समझ में? तो ये सीधी सी बात है। अगर ऐसे ही एग्जांपल्स मैंने आपको डे टू डे लाइफ का एक और एग्जांपल बताता हूँ, जैसे कि हमारा सॉइल में अगर रेन वाटर बहुत ज़्यादा हो गया तो रेन वाटर में क्या होता है बच्चों? एसिड, बराबर है। तो ये अगर रेन वाटर ज़्यादा रेनी होगा, रेनी सीजन में देखिए आपको ज़्यादा एसिडिक होगा, और ये जब सॉइल में जब चला जाएगा तो सॉइल की फर्टिलिटी कम हो जाती है। तो अगर सॉइल की फर्टिलिटी कम हो गई तो क्या होगा? तो प्रॉपर क्रॉप्स मिल नहीं सकते आपको। जो भी फार्मर्स वर्क करते हैं वहाँ पे वो तो हैरान हो जाएंगे फिर, क्योंकि वो तो काम कर रहे हैं लेकिन फसल तो नहीं निकल रही। क्यों? बिकॉज ऑफ द एसिडिक नेचर ऑफ द सॉइल। तो ये सॉइल का एसिडिक नेचर होने की वजह से प्रॉपर क्रॉप्स नहीं मिल रही। तो इसके वजह से क्या करना पड़ेगा? वो सॉइल में कुछ तो ऐसी चीज़ डालना पड़ेगी, ऐसे केमिकल्स डालना पड़ेंगे जो सॉइल्स की एसिडिटी कम कर दे और उसको न्यूट्रलाइज कर दे या उसको बेसिक में बना दे। तो ऐसा क्या यूज़ करना पड़ेगा? हम क्विक लाइम यूज़ करते हैं, बराबर है। क्विक लाइम यूज़ करने के बाद में CaO, कैल्शियम ऑक्साइड्स, ओके। तो कैल्शियम ऑक्साइड्स, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड्स यूज़ करके हम क्या करते हैं? वो जो एसिडिटी होती है जो सॉइल की उसको हम कम कर देते हैं। अंडरस्टैंड? ये कुछ इंपॉर्टेंट यूज़ है कि न्यूट्रलाइजेशन एक्चुअली होता क्या है, उसके एप्लीकेशंस क्या है हमारे डे टू डे लाइफ में, ये आपको मालूम होने चाहिए। इसकी वजह से ये टॉपिक हमने आज चालू किया है। और ऐसे एक एग्जांपल्स कभी कभी देखिए, बहुत मज़े की बात है ये। कभी कभी क्या हो जाता है, अगर किधर जा रहे तो इमीडिएटली कुछ आपको एंट बाइट्स हो जाता है या हनी बी बाइट हो जाता है कभी कभी। तो उस वक्त क्या होता है? बहुत अच्छा लगता है? नहीं तो लगेगा, अच्छा तो नहीं लगेगा, क्योंकि अगर एंट बाइट हो गया या हनी बीज का बाइट हो गया तो बहुत ज़्यादा पेन होता है, इरिटेशंस तो खतरनाक हो जाता है उधर। सो ऐसा लग रहा है क्या करे क्या नहीं करे, और फिर फ़ौरन आपको इमीडिएटली टैबलेट्स लेने ही पड़ते हैं, बराबर है, क्योंकि उस जगह पे स्वेलिंग भी हो जाती है और उस जगह पे ज़्यादा इरिटेशन। क्यों होता है ये ऐसा? आपने कभी सोचा है? तो ये क्यों होता है? ये इसलिए होता है कि वो जो इंसेक्ट है वो आपके बॉडी में इंजेक्ट करते हैं एसिड, बराबर है। कौन सा एसिड? मोस्टली फॉर्मिक एसिड इंजेक्ट करते हैं। तो ये हमारी बॉडी में फॉर्मिक एसिड इंजेक्ट करते हैं। तो इसको न्यूट्रलाइज कौन करेगा?
जब एसिड ज़्यादा बढ़ गया बॉडी में तो उसको न्यूट्रलाइज करने के लिए एंटी एसिड यूज़ करेंगे। तो बेकिंग सोडा हम यूज़ करते हैं या कैलेमिन सॉल्यूशंस यूज़ कर सकते हैं। तो ऐसे सॉल्यूशंस यूज़ करके हम वो जो पेन है, ऐसा वो स्वेलिंग है, वो कम कर सकते हैं। सो दिस इज़ द पार्ट ऑफ द न्यूट्रलाइजेशंस एप्लीकेशंस। आपके समझ में आ रहा है? तो मैंने 4 इंपॉर्टेंट एप्लीकेशंस आपके सामने रखी है आज के लेक्चर में। कौन से फिर से एक बता रहा हूँ। जो हमारा डाइजेशन सिस्टम से रिलेटेड उसके बारे में बात किया, फिर उसके बाद में टूथ इनेमल्स जो हमारे डिके होते हैं तो उसके बारे में बात किया, फिर सॉइल फर्टिलिटी के बारे में बात किया, और फाइनली अभी जो इंसेक्ट बाइट होते हैं तो उसके बारे में हमने बात की कि ये कैसे न्यूट्रलाइज करना है, क्योंकि इसमें एसिड होता है। एसिड कब न्यूट्रलाइज हो जाएगा? जब उसके खिलाफ कुछ दवाई या लेंगे ऐसी जो एसिडिटी कम करने वाले हो। तो वो कौन होता है? वो जनरली एंटी एसिड्स होता है। आ रहा है समझ में? सो दिस इज द पार्ट ऑफ टुडेज लेक्चर स्टूडेंट्स। आई होप you enjoy the lecture about the how actually the neutralization takes place in our day-to-day life. So these are the applications of today's lectures regarding the neutralizations. Thank you all of you. Have a nice day.